السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 Tombs، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات کرنے نہیں دیا گیا، مودی اور امت شاہ ذمہ دار۔ مسلمانوں کے نام پر کانگریس کو کمزور کرنے BJP اور BRS BC تحفظات میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، ریونت ریڈی کا الزام۔ ڈھائی سال کے بعد BRS اقتدار میں آئے گی، سب کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ دہلی میں ریونت ریڈی کا 100% ڈرامہ ہے، KTR کا بیان۔ امریکی صدر کا ہندوستان پر ٹیرف لزوم غنڈہ گردی ہے، ہندوستانی برآمد کنندگان، صنعت کاروں اور MSMEs کو نقصان پہنچے گا، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ شہر حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں جمعرات کی شام گرج و چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ٹریفک نظام درہم برہم، 1 گھنٹے میں 80 تا 100 ملی میٹر بارش۔
और 8 घंटे में 15 लाख रुपए का बिल, मरीज की मौत, मैयत देने से इनकार, मजलिस के एहतजाज पर मैयत हवाले। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों पार्टियां बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावट पैदा कर रही हैं। दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए गली से दिल्ली में गुज़िश्ता 3 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का फैसला किया है और इस बिल को मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया को रवाना किया था, लेकिन सदर जमहूरिया से मुलाकात न कर सके। वज़ीर आज़म और अमित शाह ने मुलाकात करने नहीं दिया। अफसोस की बात है, सदर जमहूरिया से मुलाकात करने के लिए काबीना के वज़रा इंतज़ार कर रहे थे। बीजेपी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को रोक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए बीआरएस पार्टी भी रुकावट पैदा कर रही है। बीआरएस बीजेपी कायदीन से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के अरकान राज्यसभा ने जंतर मंतर में धरने में शिरकत क्यों नहीं की, हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस मसले पर ताख़ीर से काम लोगे, इतना ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने अखलाकी तौर पर तायद नहीं की। वज़ीर आला ने कहा कि दोनों पार्टियों को अवाम सबक सिखाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी की आइंदा हिकमत अमली तैयार करेंगे और इससे पहले वज़ीर आला और कांग्रेस कायदीन ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए बीसी मसले को पार्लियामेंट में उठाने की दरख्वास्त की। हम लोग गवर्नर साहब को भेज दिए। राजभवन में जो पास होने का बिल थे वो राजभवन से प्रेसिडेंट भवन को आ गए। 4 महीने से हम इंतजार किए। राष्ट्रपति जी ये बिल पास किए तो हम चुनाव को जाने के लिए तैयारी किए और तेलंगाना हाई कोर्ट ने सितंबर 30 के अंदर ये चुनाव करने के लिए भी हम लोगों को आदेश दिए। इसीलिए हम लोग कोशिश किए। हम लोग राष्ट्रपति जी का अपॉइंटमेंट मांगे, हम लोग मोदी जी का अपॉइंटमेंट मांगे, कुछ नहीं मिल रहा है वहां से। उसके अलावा बहाना बोल रहे हम लोग ये रिजर्वेशन में मुसलमान रिजर्वेशन है इसीलिए हम लोग पास नहीं कर रहे। मैं सीधा सीधा इन लोगों का सोच धारा, इन लोग पिछले सालों में क्या क्या किया हम लोग जनता को बोलना चाहता है। जिस दिन मंडल कमीशन बनाए, मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने के लिए कोशिश किए तो कमंडल यात्रा निकाले, रथ यात्रा निकाले, तब आपको पता है देश में क्या हुआ। उसके बाद आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी कोशिश किए तो जब रोकने के लिए कोशिश किया, यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम पे जब बिल के खिलाफ कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी। आज भी हम ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तालीमी शोबे में अमेठी यूनिवर्सिटी खिदमात दिल्ली में वज़ीर आला फराहम करेंगे। रेवंत रेड्डी से अमेठी यूनिवर्सिटी के चांसलर उत्तल चौहान ने मुलाकात की। अमेठी यूनिवर्सिटी के चांसलर उत्तल चौहान ने कहा कि वो तेलंगाना के तालीमी शोबे की तरक्की के लिए अपनी जानिब से खिदमात फराहम करने पर काम करने पर आमादगी जाहिर की। उन्होंने जुमेरात को दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सरकारी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। चांसलर चौहान ने रियासत में अमेठी यूनिवर्सिटी के क़याम को रियासती काबीना से मंजूरी मिलने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आला को बताया कि वो रियासत में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा करेंगे और महारतों के फ़रोग़ के प्रोग्रामों में शिराकतदार बनेंगे। उन्होंने कहा कि आला सहूलियात और मियारी तदरीस की वजह से अमेठी यूनिवर्सिटी पहले ही अच्छी शोहरत रखती है और अब वो तेलंगाना में मज़ीद बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेगी। इस मौके पर अमेठी यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे रामचंद्रम भी मौजूद थे। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि बीजेपी के पास ख़वातीन के हुकूक़ और बीसी के हुकूक़ पर बात करने की कम अज़ कम अहलियत नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी डीएनए में खवातीन मुखालिफ और बीसी के हुकूक छीनना शामिल है। वजीर कोंडा सुरेखा ने चहारशंबे के दिन बीसी धरने के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू के तबसरे का एक बार फिर वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने जैसा है वैसा ही बोला है। इस पर होने वाले उन तबसरों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। वजीर ने कहा कि बीसी धरने के दौरान वजीर कोंडा सुरेखा की तरफ से किए गए तबसरों को बीजेपी पार्टी कायदीन की तरफ से बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करार देते हुए मजम्मत की। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि 2.5 साल के बाद बीआरएस पार्टी इख्तिदार में आने वाली है। पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद सबका हिसाब किताब किया जाएगा। तेलंगाना भवन में उन्होंने कहा कि केसीआर दौरे हुकूमत में सबके साथ इंसाफ किया गया है, लेकिन रेवंत की हालत अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी बीसी के मामले में धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्रामा है। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी वजीर आजम बनते ही तहफ़्फ़ुज़ात की बात करके धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पार्टी तब्दील की है उनकी किस्मत खराब है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के हिंदुस्तान पर मजीद 25% टैरिफ के लुज़ूम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पर मजीद 25% टैरिफ को मुसल्लत किया है क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था। ये सिफारतकारी नहीं है बल्कि उनकी गुंडागर्दी है। वो ये नहीं समझते कि आलमी तिजारत कैसे काम करती है। ये टैरिफ हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और एमएसएमईज को नुकसान पहुंचाएंगे। ये टैरिफ सप्लाई चेन में खलल डालेगी, एफडीआई को रोकेंगे और इससे मुलाजिमतों को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस ने सवाल किया कि बीजेपी के ताकतवर लोग कहाँ हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि पिछली बार उन्होंने वजीर आजम मोदी से 56 इंच का सीना दिखाने की दरख्वास्त की थी जब ट्रंप ने 56% टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप 50% पर रुक गए हैं। शायद वो हमारे गैर हयातियाती वजीर आजम से खौफज़दा हैं। क्या हमारी हुकूमत और क्या हमारी हिकमत अमली सिर्फ अरबपति दोस्तों के खजानों को भरने के लिए है? तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में कमीशन की हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आवाम के लिए नहीं कमीशन के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में नाम दर्ज करना है, कमीशन चाहिए। इंदिरामा मकान चाहिए तो कमीशन लाजमी है। सेक्रेटेरिएट में बिल्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने इसका खुलासा किया है। ये सब के सामने है। हर दिन ओहदेदारों को एसीबी रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। इससे साफ मालूम हो रहा है कि हुक्मरानी किस तरह चल रही है। कांग्रेस हुकूमत में कमीशन देने पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये अवाम की बदकिस्मती है। रेवंत रेड्डी रियासत की वजीर आला के ओहदे के लिए चुने गए, जमानत पर आकर वजीर आला बने हैं। वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट केस में रंगे हाथ पकड़े जाने वाला चोर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी को घर वापस भेजना तय है। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि वो दिल्ली जाकर कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का बिल असेंबली और कौंसिल में बहस के लिए आया तो हमने बगैर किसी एतराज़ के इसकी हिमायत की। बीआरएस ने कहा कि जिस तरह तमिलनाडु हुकूमत ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को नवे शेड्यूल में शामिल किया है, इसी तरह तेलंगाना में होना चाहिए। मधुसूदन चारी ने कहा कि अगर हमें दिल्ली लेकर जाते तो उनका फ्रॉड बेनकाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बीसी रिजर्वेशन धरने के दौरान कहा कि वो मोदी को माजूल करेंगे और राहुल गांधी को वजीर आजम बनाएंगे। मधुसूदन चारी ने कहा कि वो बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस की गलत हरकतों को बेनकाब करेंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर रुकन असेंबली टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल किया कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाए तो 50% से मशरूत होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की वजीर आला के तौर पर जयललिता ने वजीर आजम और तमाम जमातों को राजी किया और तहफ़्फ़ुज़ात हासिल किए। हुकूमत की तरफ से गवर्नर को भेजे गए ऑर्डिनेंस में सिर्फ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नर ने तालीम और नौकरियों में ऑर्डिनेंस क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस बीसी को धोखा दे रही है।
उन्होंने कहा कि बाकी 3 वजारती ओहदे बीसी को दें, रेवेन्यू और होम डिपार्टमेंट्स बीसीज को दिए जाएं, कॉरपोरेशन चेयरमैन के 42% ओहदे बीसीज को दिए जाएं, बराए नाम बीसी को महकमे दिए गए हैं। 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि इस महीने की 14 तारीख को करीमनगर में बीआरएस की बीसी गरजना एक मीटिंग होगी। शहर में एक दिन के वक्फे के बाद शदीद बारिश से आम जिंदगी पर एक बार फिर असर पड़ा है। शहर के अलावा मज़ाफ़ती इलाकों अजला बिलखुसूस शुमाली तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। शहर में मंगल को मौसम खुश्क रहा था। चारशंबे को दोपहर तक बादलों की आंखमुछली जारी थी। दोपहर के बाद कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। शाम 6:30 बजे से घने बादल के साथ तूफानी बारिश से एक बार फिर सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहर के इलाके गच्ची बावली, मज़ाफ़ती पटनचेरू, ECIL, LB नगर, दिलसुख नगर, रामचंद्र नगर, राजेंद्र नगर, मलकाजगिरी, मिर्चल, करीबी अजला विकाराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के मसरूफ इलाके पंजागुट्टा, सुचित्रा के इलाके में सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं। बारिश की सूरत हाल पर जिले हुक्काम ने शहरियों को आगाह किया है। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हाइड्रा, GHMC की टीमों को मुतहरक कर दिया गया है। शहर के चंद इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मौसम की बेइतदाली बरकरार रहेगी। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट सर्कल के ASO नरसिंह राज से मुलाकात करते हुए ज़र इल्तिवा राशन कार्ड्स की दरख्वास्तों का जायजा लिया। अहमद बलाला ने फौरी ज़र इल्तिवा दरख्वास्तों की यकसुई पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने कहा कि तमाम मुस्तहकीन को राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए सर्कल ASO नरसिंह राज ने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के अमल को तेज़ करने पर जोर दिया है। उनकी सर्कल में 23,490 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें से 9,339 दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। माबाकी दरख्वास्तों की तनक़ीह का अमल जारी है। इसके लिए ज़ायद अमले को मुक़र्रर किया गया है। मुस्तहक़ीन की दरख्वास्तों की 15 अगस्त तक यकसुई कर ली जाएगी। हर मुस्तहक़ को राशन कार्ड जारी किया जाएगा। मंजूरा नए राशन कार्ड दहिंदगान को सितंबर से राशन जारी किया जाएगा। ASO ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि नए राशन कार्ड का अमल जारी रहेगा। आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मलकपेट सर्कल ACSO हूँ। मेरा नाम A नरसिंह राज। आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल MLA साहब अहमद बलाला साहब ऑफिस आके वेरिफिकेशन लिए स्पीड अप करने के लिए साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं RPs और रेवेन्यू एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट करके इंक्वायरी करा रहा हूँ। मेरी स्पीड इंक्वायरी चल रहा मेले में। मेरा सर्किल में 23,489 एप्लीकेशंस आया, उसमें 9,339 ऑलरेडी गेट अप्रूव्ड, 14,150 एप्लीकेशंस आर गोइंग आर इन इंक्वायरी विद RPs एंड रेवेन्यू स्टाफ। ऑनरेबल CM साहब कहना है कि ये रेशन कार्ड का प्रक्रिया बंद होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस बोल के ऑलरेडी बता दिया गया। कोई भी जल्दी नहीं करना, ये बंद होता बोल के परेशान नहीं होना। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है रेशन कार्ड का जारी करने का। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को ऑर्डर भी है और ये 15 के अंदर मैं मैक्सिमम इंक्वायरी करा देता हूँ। मैं ये अपना मलकपेट सर्किल के मैक्सिमम 90% इंक्वायरी हो जाता हमारे एरिया में। कोई भी एप्लीकेंट कार्ड नहीं आया बोल के परेशान होने की बात ही नहीं है। वो DSO पेंडिंग में, ASO पेंडिंग में है इंक्वायरी होके भी, और स्कैनिंग प्रोसेस में भी है। स्कैनिंग करके
मेरे लॉगिन से डीएसओ लॉगिन से गवर्नमेंट लॉगिन को जाके अप्रूव होना पड़ता, जरा टाइम लगता। मगर सितंबर से रेशन मिलता न्यू कार्ड अप्लीकेंट्स को, जिसका अप्रूव हुआ वो सबको सितंबर से रेशन मिलने वाला है। अगस्त 25 को ये कार्ड्स पूरा अप्रूव हो जाता, डीकेआर जनरेट हो जाता। उसके बाद में सितंबर से कंपलसरी हर एक नया कार्ड वाले को, मेंबर एडिशन को कंपलसरी रेशन मिलता। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा अपने हल्के की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने टोली चौकी, गोलकंडा, बंजारा दरवाज़ा, बड़ा बाजार, छोटा बाजार, लंगर हाउस, अफसर कॉलोनी, मोती दरवाजे के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात का अहाता किया, जिसमें उन्होंने बड़े बॉक्स ट्रेन, सीवरेज लाइन और वीडीसीसी रोड्स के कामों का मुआयना किया और जल्द से जल्द इन तरक्याती कामों को पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के अरकान बलदिया और इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार डिवीजन में बड़ा बाजार से ब्राह्मणवाड़ी तक 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। रैन बाजार डिवीजन में मजीद 5 लाख रुपए के काम किए गए हैं। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और कारकुनान मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस की हिदायत पर बलदिया की सफाई करने वाले स्टाफ में सेफ्टी किट्स तकसीम किए। इस मौके पर सफाई करने वाले मुलाजिमीन ने मीर जुल्फ़िकार अली से उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने का मुतालबा किया। मुलाजिमीन ने इसके लिए इस्तदलाल पेश किया कि आबादी में बहुत इजाफा होने की वजह से सड़कों पर कचरे में भी इजाफा हो रहा है, जिस पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से मसले को रुजू करके हुकूमत से मुतालबा करेंगे। हल्का असम्बली चार मीनार एक कमर्शियल इलाका है, जिसकी वजह से कचरा ज़्यादा निकल रहा है और स्टाफ नाकाफ़ी है, जिसमें उन्होंने इजाफा करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर बलदी ओहदेदारों के अलावा रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना और नुमाइंदा रुकन बलदिया अकबर साहिल मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर बलदिया साउथ जोन टी वेंकन्ना और दूसरे अहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरा की तरक्याती कामों के मसाइल को उठाया, जिनमें नई बीटीसीसी वीडीसीसी रोड, स्ट्रीट लाइट्स और उसके मरम्मती काम, सफाई के ज़र इल्तवा कामों के अलावा मेंटेनेंस के काम भी शामिल हैं। उनका कहना है कि मज़कूरा कामों के लिए मुतल्लिका अहदेदारों को ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम कर दी गई हैं। इजलास में मुकामी रुकन बलदिया दूध बाउली मोहम्मद सलीम ने भी शिरकत की। जामिअतुल मोमिनात की जानिब से चौथी 2 रोज़ा कुल हिंद फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस 9 और 10 अगस्त बरोज़ हफ्ता और इतवार मुनक्किद की जाएगी। मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात में दुनियावी असरवी तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए जामिअतुल मोमिनात का क़याम सिर्फ 5 तालिबात से एक मकान में किया गया था, जबकि अब अव्वल से मुफ्ती कोर्स PhD से हिफ्ज़ कुरान तक तालीम दी जाती है, जिसमें जुमला 2500 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की सुलगते हुए मसाइल पर बात की जाएगी, जिसमें ख़ास तौर से असर हाजिर में मर्द के साथ किराए की मोटरसाइकिल पर ख़वातीन का सफ़र करना, मसनूई ज़हानत, लड़की के नफ़क़े का ज़िम्मेदार कौन है, लड़की किसके पास रहना चाहती है के अलावा ऑनलाइन अशिया की ख़रीदारी के अलावा दीगर मौज़ूआत शामिल हैं। 9 अगस्त को इजलास अव्वल बराए उलमा व मुफ्तियान कराम सुबह 9 बजे से शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टा पर मुक़र्रर है, जबकि इजलास दूम जलसयाम बराए ख़वातीन 10 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन में मुनक्किद होगा। एक मरीज़ा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सिर्फ 8 घंटे रहीं और उनका इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने 15 लाख रुपए का बिल बना दिया और रकम अदायगी के बगैर मैयत देने से इनकार कर दिया। पंजेशा से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित ख़ानदान के साथ ये मामला पेश आया। 26 साला खातून चारू शर्मा को जिगर के आर्जे के सबब कल शाम 6 बजे हाईटेक सिटी में वाक़ई मेडिकोर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। शरीक करवाते हुए 3 लाख रुपए एडवांस जमा करवाए गए।
मरीजा का शब 3 बजे देहांत हो गया। इंतजामिया ने मजीद 12 लाख रुपए अदा करने पर ही मैयत हवाले करने का ऐलान किया। इस पंडित खानदान के जिम्मेदारों ने सुबह 6 बजे सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में मुकीम हैं, से राब्ता किया और अपनी बिपता बयान की। सदर मजलिस ने रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग को फौरन हॉस्पिटल जाने और मैयत को मजीद कोई रकम दिए बगैर विरसा के हवाले करवाने की हिदायत दी। इस दौरान सदर मजलिस ने कमिश्नर पुलिस साइबराबाद से भी राब्ता किया और मामले की एक्सुई पर जोर दिया। मिर्ज़ा अहमद बेग ने हॉस्पिटल पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामिया और मुतवफ़ी मरीज़ा के रिश्तेदारों से भी बात की। हॉस्पिटल इंतजामिया अपने मौक़िफ़ पर अटल था, जिस पर मिर्ज़ा अहमद बेग ने मजलिसी रफ़क़ा व अवाम को लेकर हॉस्पिटल के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये वाज़े कर दिया कि जब तक मैयत बिना किसी मज़ीद अदायगी के विरसे के हवाले नहीं की जाती, एहतजाज जारी रहेगा। कई घंटों के एहतजाज और पुलिस की मदाखलत पर इंतजामिया ने बिना किसी मज़ीद मुआवजे की अदायगी मैयत विरसे के हवाले कर दी। मुतवफ़िया के शौहर पंडित हरिदास शर्मा ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने उनकी बरवक्त मदद की और मिर्ज़ा अहमद बेग को भेजकर मामले की एकसुई करवाई। हॉस्पिटल में एहतजाज के दौरान कॉरपोरेटर्स नवाजुद्दीन अहमद, हुसैनी पाशा, जफ़र खान, सीनियर कायद मोहम्मद मुर्तज़ा, मजलिस के इब्तदाई सदूर और अहदेदारों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। असद साहब को डबल शुक्रिया। हॉस्पिटल वाले हमारे बॉडी नहीं दे रहे थे बिना पेमेंट करे। अहमद बेग साहब आए, असद साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आके हमारे को बॉडी दिला के बिना पेमेंट करे बॉडी दिलाया हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। हमारे एमपी साहब को 100 बरस की ज़िंदगी मिले, हमेशा उन्हीं एमपी बन के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। असद साहब जो है ना मेरी बहुत मदद करे। मेरी वाइफ का जो है इंतकाल हो गया था, 4 बजे इंतकाल हो गया था। असद साहब को सुबह 6 बजे हमने फ़ोन किया, उन्होंने जो है मिर्ज़ा बेग को हमारे लिए मदद के लिए भेजा है। असद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरी मदद करी। ओल्ड बोयनपल्ली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुतासरीन ने आरआर नगर आराजी तनाज़े के सिलसिले में हाई कोर्ट की तरफ से दी गई नोटिस के मुताबिक सर्वे का मुतालबा किया है। मुतासरीन ने बताया कि बाज़ सियासी कायदीन बिल्डर्स गुंडागर्दी करते हुए उनकी आराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि साबिका BRS हुकूमत के दौर में हुई बेकायदगियों की वजह से मुतासरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन ने उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। हाइड्रा ने रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल के पुपालागोड़ा देहात में हुकूमत की 200 एकड़ अराजी की हिसारबंदी का फैसला किया है। जबरन कब्जों को रोकने के लिए हाइड्रा की तरफ से अराजी की हिसारबंदी की जा रही है। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने 4 शुबे को इस इलाके का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि मुकामी सोसाइटी की तरफ से हाइड्रा चीफ से इस सिलसिले में अपील की गई थी। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा सुलेमान नगर का दौरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि दौरे में ज़र-ए-इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने और नए मंजूरा कामों को शुरू करना शामिल है ताकि अवाम को राहत हो। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने सदर मजलिस से शिकायत की कि सेवरेज लाइन्स की सफाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा कचरे की निकासी में भी ताख़ीर की जा रही है, जिस पर सदर मजलिस ने इस काम के लिए मिर्ज़ा अहमद बेग को दौरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया नवाजुद्दीन के अलावा महकमे बरक़ी, आबरसानी और बलदिया के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। शहर की मशहूर खानकाह दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली वक्फ बोर्ड की नाअहली और बद इंतज़ामी का शिकार है। जुमेरात को ज़ायरीन की कसीर तादाद देखी गई। अहाते दरगाह में नस्ब एयर कंडीशन से बारिश के नाले की तरह पानी बह रहा है जो ज़ायरीन पर पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से मुकर्रर करदा निगरान ने तो अपने कमरे में AC लगा लिया, लेकिन दरगाह के अहाते में खराब शुदा एयर कंडीशन की दुरुस्तगी से पहलू तही कर रहा है। ये खानकाह वक्फ बोर्ड के रास्त इंतज़ाम में है। मजहबी उमूर के लिए एक खिदमत गुजार को जिम्मेदारी दी गई, जिसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत कम ही इंतज़ामी उमूर की देखभाल करते हैं। जू पार्क ता आराम घर डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर हालिया चंद दिनों के दौरान बाइक करतबबाजी के वाक़यात पेश आए हैं। एक ताज़ा वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें 2 नौजवान स्कूटर पर स्टंट करते देखे गए। वाज़ेह है कि इसी फ्लाईओवर के इफ्तिताह के फौरी बाद एक हादसे में यहाँ 3 बच्चे जाँ बहक हुए थे। हाल ही में थार
गाड़ी पर करतबबाजी करने वाले 3 नौजवानों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सरपरस्तों को अपने बच्चों को इस तरह की करतबबाजी से बाज रहने की तरगीब देनी चाहिए। संगारेड्डी गुमडीडाला मंडल के अनाराम देहात में फार्मा कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। बताया गया है कि चारशंबे की रात आग लगते ही अफरा तफरी देखी गई। आग ने कुछ ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था। तकरीबन 8 फायर इंजनों ने मुकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में चारशंबे की रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सदमा और उनकी टीम ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम के दौरान 2 व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग कर रहे नौजवानों को तहवील में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई। फूड डिलीवरी बॉयज को भी इस बात की ताकीद की गई कि गैर जरूरी रातों में घुमा न करें। कई 2 व्हीलर्स और दीगर गाड़ियों के दस्तावेजात की भी इस मौके पर जांच की गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सदर जमहूरिया से मुलाकात करने नहीं दिया गया, मोदी और अमित शाह जिम्मेदार। मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस को कमजोर करने बीजेपी और PRS BC तहफ्फुजात में रुकावट पैदा कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। ढाई साल के बाद BRS इख्तिदार में आएगी, सबका हिसाब किताब किया जाएगा। दिल्ली में रेवंत रेड्डी का 100% ड्रामा है, KTR का बयान। अमेरिकी सदर का हिंदुस्तान पर टैरिफ लुज़ूम गुंडागर्दी है, हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और MSMEs को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल।
शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में जुमेरात की शाम गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम, 1 घंटे में 80 ta 100 मिलीमीटर बारिश। और 8 घंटे में 15 लाख रुपए का बिल, मरीज की मौत, मैयत देने से इनकार, मजलिस के एहतजाज पर मैयत हवाले। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।